Good morning, students. So today we are going to start with multiple choice questions. Now so far the formula which we have done, memory recall beta the बंद करो. पहले तो we discussed one very important article which was all in one vector diagram. और मैं क्या करूँगा, इसी में फॉर्मूले भी लिखूंगा, बुक एकदम बंद. If the particle is going anti-clockwise, then can I say there are some vectors which are along the axis of rotation and there are some vectors which are along the tangent to the circle in the plane. Means if this is the center of the circle and if this is the line passing through this, then can I say this is axis of rotation, point number 1, right? This is axis of rotation. If the particle is going anti-clockwise, that is your choice. Then can I say this is the reference line? This is the particle, suppose found at some instant of time. Let us call this as particle at time t. This angle is delta theta. Please note, I have not put vector sign on this because the vector is here. So if this vector is delta theta vector, then do you agree with me? This vector is delta s. Yes or no? Linear displacement and angular displacement. Delta s is linear displacement, delta theta is angular displacement. Then this vector is omega vector. Likewise, this vector is v vector. Please note these vectors which I am drawing, they are along the tangent in the plane. Yes, please be very careful. This is v vector. Then this vector is alpha vector, right? Provided omega vector is increasing size wise. This is a tangential, provided v is increasing, otherwise a tangential will be this way. अभी मैंने बोला ऐसे मैं फॉर्मूला इधर ही लिख रहा हूँ, What is v vector, students? Is it omega vector cross r vector, where this is r vector? तो मैंने जो v vector लिखा, it is combination of omega and r. Can I say तीनों का तीनों मुझे डायग्राम में दिख रहा है. Likewise, what is a tangential? Is it alpha cross r? Likewise, what is delta s? Is it delta theta cross r? Yes or no? मैंने तीन equations लिखे. This is 1, this is 2, and this is 3. Yes or no? How many vectors are there in this? 7. Delta s, delta theta, v, omega, a tangential, alpha, and finally r. बराबर? इसमें 7 वेक्टर्स आ गए. अभी बेटा इसका स्केलर वाइज रिलेशन क्या होगा? A tangential is r alpha, then v is r omega, and delta s is equal to r delta theta. Yes or no? We proved last time. We did 3 things. One was proof of v and omega. Other was expression for centrifugal acceleration, which I am about to write. And the third was all-in-one vector diagram. So all-in-one vector diagram I have drawn here only. Means in one diagram, I am going to talk about my previous entire lecture. What was ACP, students? Was it A radial? Was it v square upon r? Was it omega square r? Was it v omega? Was it 4 pi square upon t square r? And finally, was it 4 pi square x square r? This is centripetal acceleration, which starts from the circumference and it is heading towards the center of the circle. Then can I say this is a radial या तो a centripetal, right? अगर particle ऐसे जा रहा है, then can I say this is a tangential also. This is a tangential also. Which is this, right? So what is the resultant of the two? Can I say it is A?
which is equal to A tangential plus A radial. A is equal to A tangential plus A radial. If I multiply this equation throughout by mass, will I get centripetal force? And what is centripetal force? Is it mv square upon r? Is it m omega square r? Is it mv omega? Is it 4 pi square upon t square mr? And is it finally 4 pi square f square mr? Yes or no? We said that centripetal force is a mandatory force. Am I right? Because if this force is not there, circular motion cannot take place. What is the job of centripetal force? It changes the direction of which vector? Velocity vector. So if this force fails, then direction of velocity vector is not changed, and therefore the particle will fly from the tangent to the circle. After that, we said that this force is not applied from outside anywhere. Not applied from outside anywhere. Why? It is present in the system itself. It is present in the system itself. Yes or no? याद है समझा बेटा? इसमें अपना पूरा लेक्चर आ गया लास्ट टाइम का. Fine. So we start with the lecture of the day. Are we on assignment number 1? Are we on assignment number 1? First, a cycle wheel is rotating at a speed of 60 rpm. अभी देखो word use किया है speed. तो speed में normally we think about v or omega. But what is the symbol? RPM. What is the unit? RPM. अच्छा, few more things. What is the meaning of x RPM? How many RPS? Is it upon 60? Right? Very, very important throughout. Remember. What is x RPH? Is it x upon 3600 RPS? Yes or no? Thereafter, do we know this formula also? Omega is 2 pi by t. या तो omega is 2 pi f. Yes or no? Where f is what? Where f is what? 1 upon time. है ना? f is 1 upon time. मतलब ये मैंने तीनों फॉर्मूला लिखा. I told you there are 3 things: omega, t, and f. So normally out of 3, if we know 2, we can find out the third one. Here out of 3, we know 1. We can find out other 2. Chalo, the first one. A cycle will be rotating at a speed of 60 rpm, right? If the diameter of the wheel is 80, then what is the linear speed at the midpoint? Don't start with me, please. Don't start with me, please. The first question is, okay. The first question is, there is a cycle wheel. There is a cycle wheel, and the diameter of this cycle wheel is how many centimeters? Diameter how many centimeters? 80 centimeters. So apply common sense. Radius is 40. Yes or no? और उन्होंने बोला है कि इसका midpoint, किसका? Spoke का. Spoke का. If the diameter of the wheel is 80 centimeters, then what is the velocity of the midpoint of the spoke? Now what do I mean by spoke? You know that cycle wheel is comprising of many spokes like this. Cycle wheel is comprising of many spokes like this. Yes or no? So we have to think about one spoke. We have to think about one spoke. So suppose this is the spoke chosen by me. This is the spoke chosen by me. Then can I say this is the midpoint? मतलब मुझे ये midpoint का circle लेना है. Right? I have to find out velocity of this point. So if the cycle wheel is going say anti-clockwise, can I say this is the direction of velocity vector? मुझे ये particle नहीं लेना है. अच्छा लेना होता तो इसका speed क्या होता? Proud of you, very good. इसका speed क्या होता? V equal to R omega. Where R is a length of the spoke. R is length of the spoke. So over here, can I say radius of the circle is L by 2? Right? If the diameter is 80 centimeter, that means radius of the wheel is 40 centimeter, which is nothing but the length of the spoke also. Yes or no? So R is L by 2. तो इसको मैं R dash बोल देता हूँ. R dash.
तो ये कितना लेने का, ये ब्लैक वाला, yes or no? And therefore this is 20 centimeter. Can we say V is equal to R dash omega? So is it L by 2, omega is 2 pi f, 2 cancel, length of the spoke is 40 centimeter. So this is 0.4, 2 pi as it is. Frequency कितना दिया है, 60 rpm. As you know, this is not allowed. Can I say this is 1 rps? Can I say this is 1 rps? That means into 1. That means my answer for V is 0.8 pi meter per second. अगर ऑप्शंस पाई में दिए हुए तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा, और अगर ऑप्शंस पाई में नहीं दिए हैं तो मैं 3.14 सब्स्टिट्यूट करूंगा. My answer should be C. My answer should be C. हाँ नहीं, एक मिनट, तो मेरा गलती हुआ कुछ. सर 2 पाई हमने कट किया, वापस नेक्स्ट स्टेप में भी रो 2. सॉरी, 2 और 2 कट कर दिया. हाँ हाँ हाँ, ये मुझे पॉइंट 2 लेना है. बराबर. L by 2 का 2 और 2 पाई. पॉइंट 2 लेना है. एक मिनट. Sir, you have written 0 point something into 2 pi, but you cut the 2 in the हाँ हाँ हाँ, ओके 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 ओके, बराबर है बराबर है. ये L by 2 था, ये 2 मैंने कट किया, बराबर. ये 2 मैंने कट किया, that means L, लेंथ ऑफ द स्पोक इज 0.4. हाँ, और ये 2 मुझे नहीं लेना चाहिए, ये 2 मैंने कट किया हुआ ना. इट इज माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट. या इट इज माय मिस्टेक. आंसर इज 0.4 pi. आंसर इज देयर. While copying, will you please be little fast? While copying. Otherwise बेटा एक काम करते हैं ना, ये मैं डिस्कस करता हूँ पूरा, सोल्यूशन एंड में ले लो, तो अपना हर एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट बचेगा. क्या करना है जल्दी बोलो, कि कॉपी करते हो. सोल्यूशन एट एंड ऑफ द लेक्चर देता हूँ. फर्स्ट आंसर इज 0.4 pi. First answer is 0.4 pi. Option कौन सा आया? Delhi. Second question. इसमें end point of the spoke होता तो L लेता, R dash is L. A cycle wheel is rotating with a uniform angular velocity omega. Underlying uniform angular velocity omega. A graph is plotted between tangential velocities of different points on the spoke and the distances. Then the graph is up. ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो. Can I say diagram same as above? Do you agree with me? Diagram same as above. खाली क्वेश्चन के बाजू में लिखते रहो. Diagram same as above. इसका मतलब ये हुआ कि V is equal to omega R. Right? So this is of the type, students. This is of the type Y is equal to mx. Right? Y x. Omega will be 2 pi by t, which should be constant. Yes or no? Therefore, can I say it is a straight line passing through origin? Passing through origin का कोई ऑप्शन है? Passing through origin का ऑप्शन है, और स्लोप दिया है. स्लोप क्या? ओमेगा दिया. Passing through origin having slope is equal to omega. Slope is equal to ओमेगा. समझा कि वापिस बोलूं? रिस्पॉन्ड करो रे. समझा तो रिस्पॉन्ड करो. ऑप्शन प्लीज. दिल्ली अगेन. ऑप्शन दिल्ली अगेन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. रुपेश, आत्मा. क्वेश्चन नंबर 3. An automobile is accelerating from linear speed 36 km per hour to 72 km per hour in 5 seconds. Can I say the speed is V because it is kmph? So what is velocity 1? 36 kilometers per hour. What is 36 kilometers per hour? 36 into 5 by 18, which is 10 meters per second. Likewise, V2 is 72 kilometers per hour, which is 20 meters per second. This happens in how much time? 5 seconds. Yes or no? You are expect. अच्छा, if the diameter of the wheel is 80 centimeter, बेटा diameter of the wheel 80 centimeter हुआ, मतलब radius कितना हुआ? And can I say that is length of the spoke? कौन है उधर?
वो वाला ऐसे चालू करके रखना, यहाँ का बोर्ड भर जाएगा फिर इधर लूंगा, ठीक है। अच्छा इसी ऐसे सब चल। हाँ, दिस इज 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.4 मीटर। यस और नो? You are expected to find out what is the angular acceleration. What is the angular acceleration? पूछने का स्टाइल मस्त है बेटा, एकदम ध्यान से सुनो। What is the formula for alpha? What is the formula for alpha? What is the formula for omega? Is it d theta by dt? What is the formula for alpha? D omega by dt. So can I write the formula as? Can I write the formula as alpha is equal to omega 2 minus omega 1 upon time? चलेगा? अभी मेरे पास ओमेगा नहीं है, लेकिन मेरे पास v और r है, तो कैन आई से दिस इज v2 अपॉन r माइनस v1 अपॉन r अपॉन t। इसका मतलब मेरा अल्फा का फॉर्मूला हो गया v2 माइनस v1 अपॉन rt, एंड आई थिंक आई नो ऑल ऑफ देम। v2 is 20 meters per second, v1 was 10, radius of the circle is 0.4 and time taken is 5 seconds. That means numerator is 10, denominator is 2. Alpha is 5 radian per second square. मुझे लग रहा है तब तक अल्फा के दो आंसर्स में 5 दिया है। Am I right? So now I have to decide the direction. Direction is along? Very good, very good. Look at the diagram. The green one along the axis of rotation. So this is along axis of rotation. Direction क्यों बहुत ज़्यादा important है समझा? Answer is 5 radian per second square along axis of rotation. Option number please. Sorry. C. So Yeah. instead can we just find, we can find A and also do it, right? Sorry. We can find A tangential is R alpha. Correct. हाँ, and उससे वही हो गया ना बेटा, A tangential is R alpha, where alpha is omega 2 minus omega 1 upon 2. Perfect, एकदम perfect. सर पीछे B दिया है। तो wrong है, पीछे B दिया है तो wrong है. Answer should be C. पीछे की wrong दिया है ना? Change it please. Answer should be C. Are we on fourth question? Are we on fourth question? A particle in uniform circular motion, and in uniform circular motion, completes 1/8 of a circle in 0.05. अभी बेटा common sense apply करो. ये 0.05 क्या है? छोटा t की बड़ा t सोच के बोलना. बड़ा t का मतलब होता है it should complete one circle. बड़ा t का मतलब होता है it should complete one circle. This is छोटा t. Yes or no? Apply common sense. Apply common sense. बड़ा t means full circle. बड़ा t मतलब full circle. छोटा t मतलब more or less then full circle. जरूरी नहीं है 1/8 हो. ये 1.5 टाइम सर्कल भी हो सकता है. ये 1.5 भी हो सकता है. So can I say t is 0.08 seconds is nothing but t by 8. Why t by 8? This is 1/8 of a circle. 0.05. Okay, 0.05. इसका मतलब t is 0.058 ज़ा. So can I say t is 0.4 seconds? क्या बेटा पूछा क्या है? Angular velocity. मतलब ओमेगा. Can I say omega is 2 pi by t? So is it 2 pi by 0.4? That means 20 pi upon 4. That means 5 pi. या तो ऑप्शन पाई में दिया होगा, पाई में ही दिया है, आंसर हो गया. Otherwise this will be 3.145 सा 15.65. 3.14 का 5 times. I hope I am not fast. ये पार्ट मेन था बेटा, ये पार्ट मेन था. उन्होंने जो 0.05 दिया था, was it capital T? Answer was no. It was small t. Anything other than complete circle is small t. Double circle हुआ तो भी हाँ mind you. Because capital T का definition is the time taken by the particle to complete one circle. तो अगर मैं ऐसा बोलता कि 2 सर्कल कंप्लीट करने में इसको 10 सेकंड लगता है, दो सर्कल तो वो भी कैपिटल टी नहीं है.
This capital T will be 5 seconds. Is that clear? Option number please. C. C. Next one. आप लोग जब तक DCT लिखोगे ना, मैं इसका प्रिंट आउट दूंगा. Please make sure that you are doing proper fair work here. ये बुक आपको 2 साल लगने वाला है. I behave like a student. Check my book. I solve these books as if I am a student. Is that clear? So please maintain proper books. Question number 5. Question number 5. A particle starts from rest and it has angular acceleration of 10 radian per second square. What is the angular displacement in 10th second? 10th, right? Yes, very good, beta, very good. What is the formula? Theta nth is omega naught plus alpha by 2 times 2n minus 1. I'm super sure अब ये काइनेमेटिक्स में आ गया फॉर्मूला, है ना? काइनेमेटिक्स में आ गया. अल्फा का वैल्यू बोलो प्लीज. अल्फा 10. अल्फा का वैल्यू 10. सॉरी, this is 10th second. That means this is 2 10s are minus 1. ओमेगा 0 का वैल्यू. अच्छा, रेस्ट पे था. तो my answer is 5 and this is 95 radian. My answer is 95 radian. Option बोलो please. Option is A. Option is A. Question number 6. Before I proceed, you want to revise anything up to question number 5? I have done up to question number 5. You want to revise anything, students, or I proceed? Question number 6. What will be the angular velocity of Earth about its axis of rotation? अभी बेटा चारों ऑप्शंस ध्यान से देखो. आवर एंड दिया हुआ है. आवर एंड मतलब अपने पास 2 कंपैरिजन, एक आवर एंड और एक अर्थ खुद. एक आवर एंड और एक अर्थ खुद. व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ आवर एंड? व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ आवर एंड? 12 hours. वेरी गुड, वेरी गुड. व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ आवर एंड? 12. राइट. एंड व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ? 24 hours. वेरी गुड, 24. अभी कंपैरिजन किसका पूछा? ओमेगा का. डू यू एग्री विद मी स्टूडेंट्स? ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम. इसका मतलब ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीरियड. सिंस टाइम ऑफ आर एंड इज लेस देन टाइम ऑफ अर्थ, देयरफॉर एंगुलर स्पीड ऑफ आर एंड इज मोर देन एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ. दैट मींस अर्थ इज गोइंग स्लोअर. ऑब्वियसली अर्थ इज गोइंग स्लोअर, है ना? जब तक अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है तब तक आर एंड 2 रोटेशंस कंप्लीट कर रहे थे. अभी एकदम लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन मैंने डिटेल में सॉल्व करके क्यों दिया समझा? This is the mathematical evidence. This is the mathematical evidence. Option. Angular velocity of Earth should be less than r. Less. So, Bombay. Yes, students. Everybody. Question number 7. नहीं बेटा, अभी इसमें यूनिट रेडियन क्यों आता है? खाली ध्यान से सुनो. स्टूडेंट्स यहाँ पे समझते कि सर दिस इज रेडियन पर सेकेंड, लेकिन इसको आप nth सेकेंड बोल रहे हो. सो nth लिया है नहीं है ना हम लोगों ने, हिडन है वो. इधर तूने nth लिखा है. सो दिस इज ऑफ द टाइप ओमेगा नॉट इन अ पर्टिकुलर सेकेंड. सो यू नो दैट डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. सो एंगुलर डिस्टेंस इज एंगुलर स्पीड इनटू टाइम. तो टाइम इधर आया नहीं, अदरवाइज तो सोच बेटा सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा. फिर ये तेरा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, ये तेरा रेडियन पर सेकंड है और तेरा ये रेडियन. तो हम लोग जब nth इंक्लूड करते हैं तो इधर वो n का स्क्वायर आ जाता है. रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर कट हो जाता है. So, but if in one of the options, if it was given 95 radian per second, we will not mark that. 95 रेडियन होंगे. पूछा क्या? एक मिनट, पूछा क्या है? एंगल ना. वापिस सुनो बेटा, इसका कंसर्न बहुत ही अच्छा है. वो क्या बोल रही है कि सर आंसर रेडियन पर सेकंड नहीं आना चाहिए. If they ask you angular speed or angle, what is the angle covered? तो एंगल का यूनिट क्या है बेटा? रेडियन. अभी कंफ्यूजन किधर होती है कि सर इसका यूनिट तो रेडियन पर सेकंड है. रेडियन पर सेकंड इनटू दैट मेनी सेकंड्स, या तो दैट सेकंड 10th सेकंड
तो रेडियन पर सेकंड और nth सेकंड कट हो जाएगा ना, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत परफेक्ट था, वेरी गुड। और ये कंफ्यूजन आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन से भी आई होगी, है ना, कि सर इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड क्यों नहीं। डायमेंशनली देखोगे तो जाओगे तो बेटा ये रेडियन हो गया, ये रेडियन पर सेकंड हो गया, रेडियन पर सेकंड अच्छा स्क्वायर। काइनेमैटिक्स में ये मीटर पर उन्होंने बोला कि मीटर पर सेकंड हमें मीटर पर सेकंड लेकिन जब बेटा उसको डायमेंशनली चेक करोगे तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड लिखना पड़ेगा ना। थीटा nth is the हाँ, थीटा nth only, yeah. So theta is a radian, but theta nth is radian. करेक्ट, बिकॉज फाइनली इट इज ओमेगा टी। समझा बेटा? तो लोग अगर मीटर पर सेकंड देते भी हैं, दैट मींस नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर स्पीड। लॉजिक समझा? आपने जो काइनेमैटिक्स में किया वो भी परफेक्ट है, लेकिन मेरा कंसर्न क्या है इधर? एंगल कवर्ड इन nth सेकंड, तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी इनटू दैट सेकंड, 10th सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड और सेकंड कट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 समझा सबको? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 20 मिनट्स? एकदम पब्लिक, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकंड्स? या क्या दिया है? हैंड कौन सा है? मिनट हैंड, ओके। कैन आई से थीटा इज ओमेगा टी, so this is 2 pi by बड़ा t into छोटा t, right? This is therefore theta is equal to 2 pi by कौन सा हैंड है? मिनट हैंड के लिए कहना है टाइम पीरियड इज 3600 सेकंड्स। कितना मिनट्स? 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स into 60, that is 20 into 60, yes or no? या तो फिर मैं ऐसा कर सकता था कि इसको मैं डायरेक्ट 60 मिनट्स लिख सकता था, तो ये भी ठीक है। दिस इज 60 मिनट्स एंड दिस इज 20 मिनट्स, बिकॉज एनीवेज मिनट कट होने वाले हैं, राइट? मिनट कट हुआ, तो इज इट 2 पाई बाय 3? दिस इज द बेस्ट एविडेंस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। ध्यान से देख बेटा, थीटा इज 2 पाई बाय टी, इधर मिनट आया पर मिनट, और ये तेरा मिनट कट हुआ, मतलब इधर तेरा रेडियन पर सेकंड आता और ये सेकंड इसके साथ मल्टीप्लाई होता। गॉट इट? तो डायमेंशनली अगर आपको 6th चेक करना है तो 7th देखने का, दैट इसका यूनिट आया क्या रेडियन पर सेकंड? खाली रेडियन आया ना, बिकॉज टाइम का यूनिट कट हो गया है, तो इधर भी टाइम का यूनिट कट हो जाता है। जिसका भी डाउट था बेटा, लेकिन अच्छा डाउट था, जिसका भी डाउट था अच्छा डाउट, गुड। अभी काम करो, 7th में कमेंट लिखो क्वेश्चन के बाजू में, to understand equation 6 dimensionally। Equation 5. No. हाँ 7th में लिखो, हाँ सॉरी 7th में लिखो, to understand the dimensions of question 5 refer this। या तो एक काम करो 5th में लिख सकते हो, to understand this dimensionally refer 7th, बेटर रहेगा। 5th क्वेश्चन में लिखो, 5th क्वेश्चन में लिखो, to understand dimensions, to understand dimensions, refer question 7, to understand dimensions, refer question 7, refer question 7। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा 7th का आंसर क्या है बाय द वे? ऑप्शन सी, रेडियन ना, अच्छा एंगल में दिया, हाँ ओके, देन इट शुड बी 120 डिग्री। एंगल तो ये भी था, डिग्री में दिया है, एंगल तो ये भी था, ये रेडियन में था। ऑप्शन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, a particle in UCM has momentum। A particle in अच्छा अभी एकदम ध्यान से सुनो बेटा, एकदम ध्यान से, you have to highlight this, underline the word momentum। अभी मेरे पास तो दो मोमेंट आए, लीनियर मोमेंटम भी है, एंगुलर मोमेंटम भी है, करेक्ट? तो when only momentum word is used, when only momentum word is used,
It is to be understood as. It is to be understood as linear momentum. और बेटा ये सारे बाकी के वर्ड्स के लिए भी एप्लीकेबल है. मतलब मैं प्रॉब्लम में वर्ड बोलूं स्पीड, मैंने लीनियर और एंगुलर नहीं बोला, देन लीनियर. मैं प्रॉब्लम में बोलता हूँ वेलोसिटी, मैंने लीनियर और एंगुलर नहीं बोला, इट इज लीनियर. नाउ सी व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. ये बेटा पार्टिकल है, ये पार्टिकल है और ये यूसीएम परफॉर्म कर रहा है. इसका लीनियर मोमेंटम हो गया यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम हो गया यहाँ पे P इज इक्वल टू mv, और इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया यहाँ पे L इज इक्वल टू I ओमेगा, राइट. या तो फिर इट इज rp sin थीटा, rp sin थीटा, दैट मींस इट इज r into mv sin थीटा व्हिच इज sin 90. इसका मतलब इसका जो लीनियर मोमेंटम है, इसका जो लीनियर मोमेंटम है उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, लेकिन इसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा एक ही जगह पे. तो ये क्वेश्चन लीनियर मोमेंटम का था कि एंगुलर का? मतलब मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट बट डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग. मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट बट डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग. ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें दोनों कांस्टेंट रहता है? दिया ऐसा कोई ऑप्शन कि इट इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? तो उसके ब्रैकेट में लिखो if angular momentum, if angular momentum, if angular momentum. As per the question, answer is Bombay. As per the question, answer is Bombay. दोनों कांस्टेंट किस में रह रहे हैं? C. हाँ, तो C के ब्रैकेट में आप लिखो if angular momentum, if angular. अच्छा, सपोज ये UCM नहीं होता तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, बिकॉज ओमेगा बढ़ेगा या तो कम होगा. अब जैसे मैंने फैन जस्ट ऑन किया तो इनिशियल फेज इज ओमेगा इज इंक्रीजिंग, बाद में 5-6 सेकंड के बाद वो कांस्टेंट स्पीड से जाता है, सो दैट टाइम एल इज कांस्टेंट. बट नाउ आई स्विच ऑफ द फैन, तो कहने से अगेन एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग मैग्नीट्यूड वाइज. थियरी क्वेश्चंस में यू हैव टू बी मोर केयरफुल. थियरी क्वेश्चंस में यू हैव टू बी मोर केयरफुल. मस्त क्वेश्चन था, स्टार मार्क करो. रेड पेन प्लीज. मैं जो जो क्वेश्चन बोलता हूँ उसको स्टार मार्क करो. 5th क्वेश्चन, सेकेंड, फर्स्ट, 8th, ये थोड़ा टाइम मेरे पास है. 9th, super. 9th, super. A body of mass 2 kg is heard in horizontal circle. Underlying horizontal circle. एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो. Horizontal circle may be UCM, may not be UCM, but vertical circle is never UCM. इधर सुन, इधर. अगर पार्टिकल वर्टिकल मैरीगो राउंड में जाता है, मतलब मान लो आप वर्टिकल मैरीगो राउंड में आप राइड ले रहे हो, तो एवरीबडी हियर वीडियो. वन टाइम यू आर क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड एंड वन टाइम यू आर फारदेस्ट फ्रॉम द ग्राउंड. मतलब यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसलिए आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है. तो वर्टिकल सर्कल इज नेवर यूसीएम. Horizontal circle may be UCM, may not be UCM. I strongly insist, आपके सिनॉप्सिस के फर्स्ट पेज पे ये होना चाहिए. आपका जो सिनॉप्सिस है ना, एकदम टॉप पे लिख के रखो बेटा, एकदम टॉप पे. Horizontal circle, horizontal circular motion may be or may not be UCM. May be or may not be UCM. Right? Statement number 2. Vertical circular motion is never UCM. Is never UCM. I told you I'm going to split up this chapter in 2 parts. Right? आपके NCERT बुक में भी ये 2 पार्ट में स्प्लिट है. एक मोशन इन प्लेन में आता है और एक दूसरे एक चैप्टर में आता है. Right? One is UCM and other is non-UCM. तो एक बात हमेशा ध्यान में रखो, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन मे बी यूसीएम, मे नॉट बी यूसीएम, बट वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नेवर यूसीएम.
back here. Question number 9. A body of mass 2 kg is whirled in horizontal circle. Have you underlined horizontal circle? By means of a string at the speed 5 rpm. अभी देखो word use किया है speed, लेकिन यूनिट क्या है बेटा? frequency rpm. वेरी गुड. फ्रीक्वेंसी बराबर, ये सेम चीज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोली थी. कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट अंडरलाइन. कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट अंडरलाइन. अभी इसको विजुअलाइज करो, इसको विजुअलाइज करो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी हियर. नहीं मिला जरा देखना प्लीज. अब so over here keeping the radius doubled, keeping the radius constant is the tension in the string is doubled. इसका मतलब है everybody, can I say centripetal force is tension? Centripetal force is played by tension. We said that it is not applied from outside anywhere. अभी आपके पास centripetal force के 5 combinations है. ये 5 कौन सा वाला यूज करोगे? प्रॉब्लम देख के डिसाइड करो. 4 pi square f square mr. 4 pi square f square mr because the problem is in terms of frequency बराबर. So is it 4 pi square f square mr? ये फॉर्मूला हुआ. अभी किसका किसका रिलेशन पूछा है उन्होंने कि if the frequency is doubled, है ना, कि टेंशन इज डबल. टेंशन इज डबल तो क्या पूछा है? स्पीड, मतलब एंगुलर स्पीड आरपीएम में दिया है ना. अप्लाई कॉमन सेंस बेटा. T is 4 pi square f square mr. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, बिकॉज ये कांस्टेंट है, ये उन्होंने कांस्टेंट रखने को बोला है. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन. इसका मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी अपॉन ओल्ड फ्रीक्वेंसी इज न्यू टेंशन अपॉन ओल्ड टेंशन का रूट, which is root of twice T1 upon T1, which is root of 2. Yes or no? So new frequency is root of 2 times old. Root of 2 is 1.41. Old frequency is 5 rpm. अभी ध्यान से सुनो, इधर किधर मैंने आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट किया था, इधर क्यों नहीं किया? Options are also in RPM. Very good. Age is something like your present age is 16 years. How old you were 3 years before? So you are 13 years. Did I change your age into seconds? No. So when something is given, if the same thing is expected, no need to change the units. 1.45 is 7. So F2 is approximately 7 RPM. Approximately 7 RPM. मुझे लग रहा है तब तक राउंड फिगर ही दिया होगा. Otherwise the correct answer is 7.071. Because root 2 is 1.414. So 14 5 is 70. That means 7.070707. That means 7.071. Right? समझा कि वापस बोलूं? Can we say frequency is directly proportional to root of tension? Since tension is doubled, right? Frequency becomes root 2 times. अभी इधर ध्यान से देखो. क्वेश्चन में रेडियस कांस्टेंट का मतलब क्या था? एवरीबॉडी हियर वीडियो, एवरीबॉडी हियर वीडियो. इसका मतलब ये था, राइट? अभी ये डिक्रीजिंग रेडियस हुआ, ध्यान से सुनो, ये डिक्रीजिंग रेडियस हुआ. अगर मैंने स्ट्रिंग यहाँ से पकड़ा होता और मैं ग्रेजुअली ऐसे करता तो ये इंक्रीजिंग रेडियस हुआ. सी व्हाट इज हैपनिंग, माय फिंगर इज स्लाइडिंग अलोंग द स्ट्रिंग, चेक, और ये मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ. दैट मीन्स द रेडियस इज इंक्रीजिंग. ये ऐसे था और ये ऐसे जा रहा है, दैट मीन्स रेडियस इज डिक्रीजिंग. ये प्रॉब्लम में दोनों चेंज नहीं होता. आई मीन रेडियस वाज कांस्टेंट एंड मास एनीवेज इज कांस्टेंट. मस्त क्वेश्चन था बेटा. ऑप्शन बोलो. ऑप्शन ए. इंपॉर्टेंट मार्क करो. अपना असाइनमेंट में से तो कुछ भी नहीं छोड़ने का. ट्रस्ट मी, वी वर्क वेरी वेरी हार्ड इन डिजाइनिंग दिस एमसीक्यूज. इसका असाइनमेंट 5 और 6 देखोगे ना, they are respectively JEE means and JEE advanced. In fact, there will be some questions where it is written also बाजू में IIT.
बट नीट 2025 का पेपर देखने के बाद वी स्ट्रांगली रेकमेंड कि बायो के स्टूडेंट्स को भी वो करना है, राइट? तो जब मैं वो लेक्चर दूंगा ना, यूजुअली 2024 के पहले भी यूज्ड टू टेक दिस दोस लेक्चर्स ओनली फॉर जेडब्ल्यू नीट्स, मतलब नीट का पोर्शन एक थोड़ा 15 दिन पहले खत्म होता था, बिकॉज दे डोंट नीड टू डू जेडब्ल्यू मेंस नाउ। एटलीस्ट आप लोग जेडब्ल्यू मेंस तक करें, लेकिन एकदम स्टार्टिंग में एक्सटर्नल बुक में से नहीं करने का, बिकॉज उसमें क्या होता है 3-4 क्वेश्चन का कॉकटेल होता है, 3-4 चैप्टर्स का। तो एकदम स्टार्टिंग में जब आप चैप्टर रिवाइज करते हो, डोंट लुक एट जेडब्ल्यू मेंस क्वेश्चंस, राइट? दैट यू कैन डू व्हेन 3-4 एग्जाम्स हैव हैपेंड, राइट? एंड फाइनल पोर्शन इज ओवर दैट टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 इजी है, डायरेक्ट लिखो चलेगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 डायरेक्ट लिखो चलेगा? चेक करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 is based on omega 2 is omega 1 plus alpha t. It is like v is equal to u plus at. It is like v equal to u plus at. A wheel is starting with angular velocity 10, means its initial velocity is 10. After 5 seconds its acceleration is 2. Everybody here, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया। After how many seconds? 5. इसका मतलब ओमेगा 2 20 हो गया, इसका मतलब ओमेगा 2 is 20 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन बोलो प्लीज। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। A particle at rest in circular motion is going with uniform acceleration of 4 pi radian per second square. अब ध्यान से देखो, वर्ड बोला एक्सीलरेशन, लेकिन यूनिट दिया कि नहीं? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इधर मैंने क्या लिखा था कि द वर्ड इज ओनली मोमेंटम, अंडरस्टैंड दिस इज लीनियर मोमेंट, तो वो तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। द वर्ड इज एक्सीलरेशन, सो आई शुड हैव अंडरस्टूड दिस एज लीनियर एक्सीलरेशन, बट आई एम लुकिंग एट द यूनिट आल्सो। सो इज इट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर? तो बेटा ये क्या हो गया? अल्फा, 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा इज 4 पाई रेडियन पर second square. The time in which the angular velocity is 50 pi radians per second, right? मतलब time is how much? If omega 2 is 50, कितना है? pi? Sorry, 50 pi radian per second. इसका मतलब initial speed 0 था। Same formula ना बेटा? Omega 2 is omega 1 plus alpha t. Omega 2 is 50 pi. Omega 1 was 0. Alpha is 4 pi, time पूछा है, so can I say time is 50 pi upon 4 pi, which is 50 by 4, 25 by 2, 12.5 seconds. 12.5 seconds. Option please. C. Question number 12. Question number 12. Angular momentum in UCM is directed obviously along the axis of rotation. Obviously along the axis of rotation. सोच के बताओ बेटा क्या होना चाहिए? Perpendicular to the plane of circle, along the radius and away from the center, along the radius and towards the center. Tangential. Answer should be first one. Answer should be first one. Or can I say this is knowledge based? Can I say this is knowledge based? कहाँ से आया ये? ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, तो बेटा ओमेगा किधर है? इधर है, मतलब एल भी इधर ही होगा ना, एल इधर ही होगा, और वी इधर है, वी, इसका मतलब पी वी इधर ही होगा। लीनियर मोमेंटम इज अलोंग द टेंजेंट इन द प्लेन, एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पूरा मैंने सिनॉप्सिस में दिया हुआ है सर। क्वेश्चन नंबर 13। अ फ्लाईव्हील, ध्यान से सुनो बेटा, फ्लाईव्हील का मतलब होता है डिस्क, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द फैन। आप जो फ्रिस्बी खेलते हो ना, दैट इज आल्सो फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील का मतलब डिस्क। रिंग और डिस्क में फर्क है। एनीबॉडी वेयरिंग कड़ा? ये बेटा रिंग हुआ, ओके, ये रिंग हुआ और ये डिस्क हुआ। ये जो कैप है ना, ये डिस्क हुआ। Here mass is only on the circumference and here mass is everywhere. Be careful please. Ring and disc both are circular, but दोनों का मीनिंग अलग है। It is exactly like hollow sphere and solid sphere.
स्फीयर दोनों है, दोनों का वॉल्यूम सेम 4/3 पाई आर, दोनों का एरिया सेम 4/r², लेकिन एक में मास सिर्फ बाउंड्री पे है, राइट, और एक में मास थ्रू आउट है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13, फ्लाईव्हील अंडरलाइन करो और फ्लाईव्हील के ऊपर लिखो, फ्लाईव्हील का मतलब होता है डिस्क. फ्लाईव्हील के ऊपर लिखो, उसका मतलब होता है डिस्क. A flywheel rotates about a fixed axis and slows down, underline, from 300 rpm to 100 rpm in 2 minutes. अभी ध्यान से देखोगे तो फ्रीक्वेंसी आरपीएम में और टाइम भी मिनट्स में है, और उन्होंने बोला है कि फाइंड आउट एंगुलर रिटार्डेशन इन रेडियन पर मिनट स्क्वायर. मतलब हमको मिनट्स को सेकंड में चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो कैन आई से क्वेश्चन नंबर प्लीज. सिंस एंटायर डेटा इज इन मिनट, since entire data is in minutes, do not convert, right. Now alpha is omega 2 minus omega 1 upon time. omega का मतलब 2 pi f. मुझे कैसे मालूम कि ये फ्रीक्वेंसी दिया है और ओमेगा नहीं दिया है? आरपीएम. वेरी गुड. अदरवाइज वो लोग रेडियन पर मिनट देते हैं. वेरी गुड. दिस इज 2 pi f2 minus 2 pi f1 upon time. So can I say alpha is 2 pi? Will you please help me with the second frequency? Slow down हो रहा है. 100. Very good. What was the first? 300. Fantastic. How much time? 2 minutes. तो ये हो गया बेटा 2 pi into minus 100. That means my answer is minus 200 pi. Minus sign का मतलब retardation. Minus sign का मतलब retardation. इसका मतलब my answer is 200 pi. My answer is 200 pi. Will you please help me with question number 12 का option? A. And 13? Sorry? Delhi. यहाँ तक सब कुछ समझा? एकदम श्योर? How many MCQs are there? 25 or 30? 30. Okay. Mostly we will be able to finish all 30. Anika? पॉज करोगे, स्टॉप नहीं है, पॉज. ओके, सो द प्रीवियस क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 13. आर वी ऑन क्वेश्चन नंबर 14? आर वी ऑन क्वेश्चन नंबर 14? आर वी ऑन क्वेश्चन नंबर 14? A particle is revolving in a circle. Its angular speed increases from 2 radian per second to 40 radian per second in 19 seconds. Sorry. Radian per second मतलब ओमेगा की फ्रीक्वेंसी. Radian per second मतलब ओमेगा की फ्रीक्वेंसी. I want to send it to my dad. Okay. Question 14 of assignment 1. A particle moves in a circular path of radius 0.4 meter. Radius is 0.4 meter. And it's making 5 revolutions per second. Frequency is 5 revolutions per second. Frequency is 5 revolutions per second. You are expected to find out the speed of the particle. एकदम clearly बोला है in meters per second. इसका मतलब v पूछा है. Do we know the formula? V is r omega. Can I say this is r times 2 pi f? इसका मतलब v is 0.4 times 2 times pi times frequency is 5. Right? So this is 10 and this is 0.4. So v is equal to what did I do? 4. 4 and 2. 8 pi. Yes or no? This is 5 into 0.4. 2. 4 pi. My answer is 4 pi. Option टाइम में दिया है कि नंबर में? That means 12.56 है ना? 3.144 सा मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. अब ध्यान से सुनो, पाई को 180 डिग्री कब लेने का और 3.14 कब लेने का. जब एंगुलर चीज आती है तभी 180 डिग्री, और जब लीनियर चीज आती है दैट मींस 3.14. एल्जेब्रिकली 22/7 3.14 एंड ज्योमेट्रिकली 180 डिग्री. बी केयरफुल प्लीज. आगे याद है हम लोगों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा था, आंसर आया था 2π/3 रेडियन. तो उसको मैंने 2/3 into 3.14 नहीं किया था बिकॉज दैट वाज एंगुलर क्वांटिटी. बी केयरफुल प्लीज.
तो आई सजेस्ट ये भी आप एकदम बुक के एकदम स्टार्टिंग पेज पे लिख लो, एकदम स्टार्टिंग में पाई इज 22/7 या तो 3.14 if linear quantity and pi is 180 degree if angular quantity. Be careful please. Question number 15. The angular speed of the minute hand in degree per second. एकदम clearly बोला है, degree per second. Angular speed is omega. This is 2 pi/t. कौन सा hand है? Minute hand. So can I say this is 2 pi/60 into 60? Yes or no? So can I say omega minute is very important. 2 into 180 degree. क्यों? क्योंकि डिग्री में पूछा है उन्होंने, अंडरलाइन डिग्री. Upon this is 3600. So this is 2 into 1/20. My answer is 1/10. 0.1 degree per second. 0.1 degree per second. अच्छा, अदरवाइज ओमेगा क्या होता? अदरवाइज अगर उन्होंने रेडियन पर सेकंड में पूछा होता तो रेडियन पर सेकंड में पूछा तो इसको 2 पाई ही रखने का. राइट, दैट मींस इट विल बी पाई अपॉन 1800. पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकंड. तो एक छोटा सा कमेंट लिखो उधर. If it was asked in radian per second, then the answer is pi by 1800. This is pi upon 1800 रेडियन पर सेकेंड. अगर रेडियन पर सेकेंड में पूछा होता तो so 14th and 15th the answers are respectively C and B. Are we on question number 16? What is the angular speed of second hand? Simple. What is omega second, students? Is it 2 pi by time of second hand? Is it 2 pi by 60 seconds? That means my answer is pi by 30 radian per second. बराबर, radian per second. Previous question was degree per second. This question is radian per second. Question number 17. What's the exact time? When the angular velocity of the particle performing circular motion is decreasing, underline decreasing, then what happens to the direction of angular acceleration? Everybody here. ये बेटा circular motion है, बराबर, and this is axis of rotation. Apply common sense. मैं इधर 2 एरोस बना रहा हूँ, ध्यान से सुनो. मेरा एक एरो है ओमेगा का, बराबर, तो मेरा दूसरा एरो है अल्फा का. इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, मेरा सिर्फ अल्फा का एरो उल्टा हो जाएगा. इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, ओमेगा वही रहेगा. याद करो, एवरीबडी हियर वीडियो. If the particle is going anti-clockwise, theta, omega, alpha if omega is increasing, alpha if omega is decreasing. याद आया? Right? तो what is happening? Alpha is decreasing. इसका मतलब 17 का आंसर should be opposite in direction to that of angular velocity. ये बेटा angular velocity है, तो ये angular acceleration हुआ. उल्टा है कि नहीं? आंसर इज उल्टा. आंसर इज बॉम्बे. 17th का आंसर इज बॉम्बे. खोपड़ी बात करो. 17th का आंसर इज बॉम्बे. खोपड़ी बात करो. क्वेश्चन नंबर 18. A particle is moving in a circular path of radius r.
in half the revolution, underline half the revolution, the displacement and distance are, everybody here, particle is completing half the circle. That means if this is point A and this is point B, then can I say this is the shortest distance, which is called displacement. Can I say displacement is 2r, and this is the actual distance covered. Is it pi r? So distance is pi r and displacement is 2r. पहले कौन सा वर्ड यूज किया है, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट? पहले तो my answer should be 2r, pi r. My answer should be 2r, pi r. My answer should be 2r, pi r, 2r, pi r मतलब C. We can save little time. 18th में आप लिखो solve 22. 18th में आप लिखो solve 22. So 22 says that a body is moving in a circular path with uniform speed 5 and the radius is 2. If the body describes semicircle, underline semicircle, then the difference between the distance and the displacement is approximately. मतलब बेटा स्पीड उल्लू बनाने के लिए दिया है, स्पीड उल्लू बनाने के लिए दिया है, बराबर. पहले कौन सा वर्ड है, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंस पूछा है. सिंपल. कैन आई से डिफरेंस इज पाई आर और 2r में से बड़ा कौन? ऑब्वियसली पाई आर, राइट. सो कैन आई से इट इज पाई आर माइनस 2r. दैट मींस इट इज पाई माइनस 2r कॉमन. दैट मींस इट इज 3.14 माइनस 2. r का वैल्यू प्लीज 2. So it is 1.142 are. My answer is approximately 2.28 meter. My answer is 2.28 meter. Yes or no? मतलब 2 meter. मतलब 2 meter because 3 meter is very far. Approximately 2 meter. Approximately 2 meter. 22 का आंसर is Bombay. 22 का आंसर is Bombay. Come back please. Question number 19. Question number 19. I hope I am not fast. आपने 18 में लिखा solve 22. 19th. A particle is moving along the circle of radius 2 meter with constant speed of 8. It covers quarter of a circle in. पहले it covers circle in, वो तो उतना ढूंढो. पहले circle. Everybody here. What is the data given? Radius कितना है? 2 meter. Okay. बाद में speed कितना है? 8 meter. ध्यान से सुनो बेटा. Stop. V is equal to r omega is equal to r times 2 pi by t. इसका मतलब time is 2 pi r by v. Anyways, if you see this carefully, time is distance upon speed. So when one circle is completed, distance covered is 2 pi. 2 pi r. Radius का value is 2. This is 8. So can I say time is pi by 2? अच्छा pi by 2 में ये कितना सर्कल कंप्लीट करेगा? वन सर्कल, राइट. एक सर्कल के लिए टाइम t लगता है. Therefore for 1/4 of a circle, 1/4 of a circle, can I say time taken will be t by 4? So time taken will be pi by 2 by 4. That means my answer will be pi by 8. My answer will be pi by 8. Options pi में दिया है कि नंबर में? My answer is pi by 8. My answer is pi by 8. Right? We can save time. आप 19th में लिखो solve 23. ये नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ बेटा. आप लोग उधर पेंसिल से आप लोग खुद ही करो. मैं 23rd solve नहीं कर रहा हूँ. आप लोग खुद solve करो, मुझे आंसर बताओ क्या है. क्या? ये तो ओमेगा है ना बेटा. ओमेगा इज 2 पाई बाय बड़ा टी. तो पहले मैंने बड़ा टी ढूंढा. एक मिनट इधर देख. पहले मैंने बड़ा टी ढूंढा बेटा. ओमेगा इज 2 पाई बाय बड़ा टी ना. याद आया? ओमेगा इज 2 पाई बाय. मैंने प्रीवियस बोर्ड पर कोई फॉर्मूला लिखा था दोनों. ओके. 23rd का क्या आंसर आ रहा है आपका? 5 by 6. वेट लेट मी कंफर्म. 5 by 23rd का आपका आंसर आना चाहिए बॉम्बे. बॉम्बे आ रहा है. हाँ. 23rd में आप लिखो सेम एज 19th. 19th में आप लिखो सॉल्व 23rd. जो एकदम सिमिलर क्वेश्चंस है ना,
उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो आप खुद से करोगे। आर वी ऑन 19 के बाद 20 पर पे गए ना हम लोग। आर वी ऑन क्वेश्चन नंबर 20। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग, यूसीएम वर्ड बोला है, अंडरलाइन यूसीएम, फ्रॉम 60 आरपीएम टू 180 आरपीएम। एवरीबडी हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 60 आरपीएम? अभी के बाद ये डायरेक्ट लिखने को आना चाहिए। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 180 आरपीएम? कैन आई से दिस इज 1 आरपीएस divided by 60 and this is 3 rps divided by 60. That means this is initial frequency, this is final frequency. Time please, time 20 seconds. क्या पूछा है? What is the angular acceleration? Everybody, can I say alpha is omega 2 minus omega 1 upon time? That means 2 pi f2 minus 2 pi f1 upon time. ऐसा एक सेम क्वेश्चन किया हम लोगों ने शायद, वो रेडियन पर मिनट स्क्वायर वाला शायद किया। हाँ, इट इज सेम एज 13th, सेम एज 13th। मैं फॉर्मूला लिख के छोड़ रहा हूँ, आप 20 में बोलो सेम एज 13, 13 में बोलो सॉल्व 20। माय आंसर इज पाई बाय 5, नो 2 पाई। माय आंसर इज 2 पाई, है ना? 2 कैंसल, my answer is 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 21 एकदम इजी है बेटा, आप लोग करोगे, मैं सिर्फ फॉर्मूला दे रहा हूँ। व्हाट इज एंगल? इज इट ओमेगा इंटू टी? एंड व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टी। सॉल्व करो। फ्रीक्वेंसी आरपीएस में होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी आरपीएस में होना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर यू। 100 21 का आंसर सी आ रहा है, 100 पाई। Twenty-two is same as 18th। कर दिया ना? हाँ 22 हो गया, 23 3 भी हो गया सॉल्व में। ओके, फिर भी हो गया। हाँ 23, 24 A ceiling fan of diameter 120 centimeter is rotating with a speed of 240 rotations per minute. Underline. क्या हुआ? Sir, the 20th question it should be 20 seconds. ये क्या है? अच्छा 28। हाँ, इसीलिए उसका आंसर जी दिया। 2 pi by 20, pi by 10, बराबर ना? तो अभी क्या आंसर आ रहा है? अभी भी आपने भी अभी नहीं, 1 मिनट, pi by 10 कौन सा ऑप्शन? so pi by pi by 5 because it's 2 pi by 20. No, it's 4 pi by 20. Pi by 5. That means 2 pi by 10. 6.28 upon 10. 0.628. 0.628. This is 0.628. अभी ऑप्शन बोलो। बॉम्बे। Question number 24. A ceiling fan of diameter 120 centimeter. अगर बेटा diameter 120 हुआ तो रेडियस कितना हुआ? 60. Radius is 60 centimeter. That means 0.6 meter. Right? It is moving with 240 rotations per minute. ये क्या हो गया? Per minute मतलब frequency. Is it 240 upon 60? That means 4 rotations per second. ये तो 4 revolutions per second. What is the linear speed stuck at the tip of the blade? Everybody here. Everybody here. अगर बेटा ये फैन है, हाँ, तो इधर एक पार्टिकल है, तो उसका लीनियर स्पीड कितना? तो ये एकदम कॉर्नर वाला पॉइंट है ना, ऐसे सीधा v इक्वल टू r ओमेगा। अगर ये सीलिंग फैन था और अगर ये ब्लेड था, राइट, तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये डस्ट पार्टिकल है, ये राइट। तो कैन आई से दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द ब्लेड विच इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो लेंथ ऑफ द ब्लेड इज रेडियस ऑफ द सर्कल।
डू यू एग्री विथ मी? V is R omega. That means it is L omega. So V is equal to length of the radius of the circle is 0.6. Omega is 2 pi f. So can I say V is 0.6 into 2 pi into 2? Frequency कितना है? 4. 8. 8 6 48. 4.8 pi. ऑप्शन पाई में है कि नंबर में है? अच्छा ओके, एक ही ऑप्शन पाई में और वही आंसर होगा। अच्छा बाई चांस नंबर में होता तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? 3.14 की 180 डिग्री। वेरी गुड, 3.14. So 24th, the answer is 4.8 pi. Option A. 25. 25. Sorry. A cycle wheel is rotating with the speed of 60 rpm. If the diameter is 80, then the linear speed. Linear है क्या angular? हाँ, फर्स्ट लीनियर का था। अच्छा तो इसमें एंगुलर की है। एंगुलर स्पीड ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द स्पोक, ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द स्पोक। कैन आई से ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। लीनियर स्पीड विल चेंज विद आर, बट व्हाट अबाउट एंगुलर स्पीड? एंगुलर स्पीड विल रिमेन द सेम। और इसमें उन्होंने क्या बोला है कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द स्पोक। So can I say omega is V by R? So if this is the cycle V, if this is the cycle V, then this is the spoke, and length of the spoke is equal to the radius of the circle. Length of the spoke is equal to the radius of the circle. You are expected to find out angular speed of the midpoint. You are expected to find out angular speed of the midpoint. This is midpoint. फर्स्ट में बेटा लीनियर स्पीड पूछा था, इसमें एंगुलर स्पीड पूछा है। सो कैन आई से V is equal to R omega, which is L by 2. Omega is 2 pi f. 2 cancel, right? इसमें डायरेक्ट में ओमेगा ही ढूंढ सकता था फिर तो 2 pi f. फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? फ्रीक्वेंसी 60 rpm, इसका मतलब 1 rps। तो इसमें मुझे लीनियर स्पीड की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एंगुलर स्पीड पूछा है, मतलब लेंथ उल्लू बनाने के लिए दिया है, राइट? ओमेगा इज 2 pi f, दैट मींस 2 pi 1 सा। माय आंसर इज 6.28 रेडियन पर सेकंड। माय आंसर इज 6.28 रेडियन पर सेकंड, या तो 2 pi रेडियन पर सेकंड। लास्ट वाला ऑप्शन का यूनिट चेंज करो, लास्ट वाला ऑप्शन का यूनिट चेंज करो। 25 नया ऑप्शन है ना मेरे में, ये नया ऑप्शन है, ये चालू करता है, ये ऐसे हाँ ठीक है, ब्लैक से 25 समझा सबको? आंसर इज दिल्ली, आंसर इज दिल्ली। प्रैक्टिस पेपर 1 शुरू किया तो इसमें बहुत सारा मिक्स बैग है। असाइनमेंट 2 में ये 3 को छोड़ के सब कर सकते हो। इनफैक्ट ये नेक्स्ट टाइम का होमवर्क ही है, और तुम लोग जब DCT सॉल्व करोगे ना तभी मैं चेक करता हूँ कि और क्या क्या कर सकते हो। नेक्स्ट वन, आर्ग्यूमेंट 26, आर्ग्यूमेंट 26 पूछने का स्टाइल मस्त, इंपॉर्टेंट मार्क करो। 26th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो। A student notes down the following characteristics about UCM, underline UCM. About UCM, underline UCM. Magnitude of angular velocity and tangential velocity remain constant. Direction of angular and tangential velocity are same. क्या क्या चेंज होगा और क्या क्या चेंज नहीं होगा, ध्यान से सुनो। ये सर्कल है, पार्टिकल इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है,
यहाँ पे कौन सा वेक्टर है? ओमेगा। एंड देयरफॉर यहाँ पे कौन सा वेक्टर है? एल, एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे कौन सा वेक्टर है? यहाँ पे कौन सा वेक्टर है? v। देयरफॉर यहाँ पे कौन सा वेक्टर होना चाहिए? t। फिर ये पार्टिकल घूम के इधर आया, तो ये कौन सा वेक्टर हुआ? v वापिस। तो ये कौन सा वेक्टर हुआ? p वापिस। तो कौन सा वेक्टर चेंज होते रहता है और कौन सा वेक्टर कांस्टेंट रहता है? कैन आई से मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम? मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर सेम, बट व्हिच डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग? लीनियर का। तो फर्स्ट ऑप्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी आर सेम। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, direction of angular and tangential velocities are same. Wrong. First is true. Second is false. Do you agree with me? Third one, direction of angular velocity is same but tangential velocity changes. True again. Fourth one, directions of both angular and tangential acceleration change. False. So my answer is true, false. इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। यस, आंसर इज बॉम्बे। पूछने का स्टाइल मस्त। क्वेश्चन नंबर 27, सुपर। बेटा ये अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होता है, ये लेथ मशीन में यूज होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल इज साइकिल का व्हील, बाइक का व्हील्स। यू मस्ट हैव सीन साइकिल के व्हील में पर्टिकुलर, यू मस्ट हैव सीन एक व्हील छोटा होता है और एक व्हील बड़ा होता है और बीच में चेन होता है। मैं राइट? बीच में चेन होता है। सो एज द व्हील्स रोटेट, दिस चेन आल्सो इज कंटिन्यूअसली मूविंग, राइट? सो दिस इज रेडियस ऑफ अ स्मॉलर व्हील एंड दिस इज रेडियस ऑफ अ लार्जर व्हील, करेक्ट? तो कौन सा स्पीड चेंज होगा और कौन सा स्पीड चेंज नहीं होगा? Can I say omega will be constant? Can I say no? Over here v will be constant. Linear speed of smaller wheel will be same as linear speed of larger wheel. इसका मतलब r omega smaller is r omega larger. समझा कि बाउंसर गया? ऐसा होता है क्या कि ये स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर और ये 40 किलोमीटर पर आवर है? एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने रोड रोलर देखा हुआ है, when the road is made and when the coal tar is spread on it, right? A very heavy body moves on it. एक व्हील छोटा होता है, एक व्हील बड़ा होता है। Another best example is ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में आगे की व्हील्स छोटे, पीछे की व्हील्स बड़े। तो ऐसा थोड़ी होता है कि जिसका रेडियस छोटा उसका स्पीड ज़्यादा, जिसका रेडियस ज़्यादा। दोनों का लीनियर स्पीड सेम है। लीनियर स्पीड सेम है मतलब एंगुलर स्पीड सेम नहीं है। उन्होंने शायद एंगुलर का रेशियो पूछा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ टू व्हील्स? अभी पहले कौन सा वर्ड यूज किया है उन्होंने? रेडियस ऑफ लार्जर व्हील इज 3 times स्मॉलर व्हील, राइट? तो कैन आई से ओमेगा ऑफ लार्जर अपॉन ओमेगा ऑफ स्मॉलर इज रेडियस ऑफ स्मॉलर अपॉन रेडियस ऑफ लार्जर। रेडियस ऑफ स्मॉलर इज RS, रेडियस ऑफ लार्जर इज 3 times RS. My answer is 1/3. My answer is 1/3. Smaller wheel will move fast, larger wheel will move slow. ऐसा बोल सकते हैं जब बड़े का छोटे व्हील का फ्रीक्वेंसी 3 times ऑफ। चलिए, आपके जो वॉच का व्हील्स होता है ना, वॉच के अंदर वो भी सेम होता है। सेकेंड हैंड को सबसे कम टाइम लगता है, राइट? तो उसका एंगुलर स्पीड सबसे ज्यादा है, मतलब वो व्हील का साइज सबसे कम है। इज दैट क्लियर? गियर्स का भी सेम ही लॉजिक रहेगा। कम अगेन? गियर का भी सेम ही लॉजिक रहेगा ना, तो हाँ यस, गियर्स। ये गियर में सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है बेटा। आप जब प्रोफेशनल साइकिल चलाते हो जिसमें गियर्स चेंज होते हैं तो उसमें चेन एक से दूसरे पे शिफ्ट होता है। परफेक्ट, वेरी गुड। 28 बेटा डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, देखना है मुझे आपको याद है कि नहीं। 28 इज अ डेरिवेटिव का क्वेश्चन। 28 is a derivative का question. The angular displacement is given as theta is equal to 5t cube minus 6t square plus 2t. 5t cube minus 6t square plus 2t. This is angular displacement मतलब theta. बराबर? उन्होंने आपको angular acceleration पूछा है।
अच्छा ये क्वेश्चन में एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है और नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। देखो उसमें भी थीटा का इक्वेशन दिया है। मतलब ये पेज के सब क्वेश्चंस एकदम मस्त है, सबको स्टार मार्क करो। अच्छा व्हाट इज ओमेगा डी थीटा बाय डी टी? बेटा मुझे डायरेक्ट डेरिवेटिव चाहिए, चलो कोशिश करो। इज इट 5 into 3t square minus 6 into 2t plus 2? इसका मतलब ओमेगा हो गया 15t square minus 12t plus 2. Anybody any doubt? बेटा नेक्स्ट एग्जाम में सर्कुलर मोशन भी है, 4th of January को फुल पोर्शन, उसमें सर्कुलर मोशन भी है। ओके चल नेक्स्ट अल्फा क्या होगा? अल्फा डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा, डायरेक्ट लिखूं चलेगा क्या? इसका डेरिवेटिव बोलो 30t, वेरी गुड, माइनस 12 प्लस 0, तो कहने से अल्फा का इक्वेशन हो गया 30t माइनस 12। ओमेगा पूछा है कि अल्फा एट द एंड ऑफ, so when time is 2 seconds, कहने से अल्फा इज 30 into 2 minus 12, मतलब 48 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 48 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 29th वापिस थीटा का इक्वेशन दिया है, देखो 29th वापिस थीटा का इक्वेशन दिया है। चलो इसका डेरिवेटिव आप लोग सोच के बोलोगे। थीटा इज 2.5 साइन पाई बाय 4t। चलो बेटा सोच के ओमेगा इज इट डेरिवेटिव ऑफ थीटा? वेट कर रहा हूं, बोलो 2.5 as it is. What is derivative of sin omega t? Cos omega t into omega. So is it cos pi by 4t into pi by 4? अब एकदम ध्यान से सुनो बेटा, खोपड़ी एकदम ध्यान से सुनो। ओमेगा is 2.5 pi by 4 cos of pi by 4t. हाँ एकदम ध्यान से सुनो। ये वाला पाई 3.14 लेने का, क्योंकि कॉस फंक्शन के बाहर है, मतलब ये एल्जेब्रा है। लेकिन ये वाला पाई 180 डिग्री लेने का। इज दैट वेरी क्लियर? ये पर्टिकुलर एग्जांपल आप लोग एकदम सर्कुलर मोशन के सिनॉप्सिस एकदम फर्स्ट में लिखोगे कि व्हेन टू यूज पाई एस 3.14 एंड व्हेन टू यूज पाई एस 180 डिग्री। टाइम कितना दिया है? टाइम 2 सेकेंड्स। इसका मतलब दिस इज कॉस ऑफ पाई बाय 4 इंटू 2। अभी ये 0 हो गया, इसलिए मेरा आंसर 0। अगर बेटा ये 2 को छोड़ के और कुछ दिया होता ना, तो फिर ये पाई मुझे 3.14 लेना चाहिए। समझा कि वापस बोलूं? एकदम ध्यान से सुनो बेटा। थीटा का इक्वेशन दिया मैंने ओमेगा का इक्वेशन लिखा। अब इसमें पाई 2 बार आ रहा है। कॉस फंक्शन के बाहर वाला पाई इज 22/7 एंड कॉस फंक्शन के अंदर वाला पाई इज 180 डिग्री। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड, ये जो पहले 3 स्टेप्स है ना बेटा, पहले 3 स्टेप्स या तो मैं इधर नोट करके दे देता हूं, आप ये नोट ऐड कर सकते हो। पहले सुन लो, इफ थीटा इज के साइन ओमेगा टी, राइट, या तो ओमेगा साइन ओमेगा टी, therefore थीटा इज 2 पाई बाई टी साइन 2 पाई बाई टी। तो इसमें पाई 2 बार आया, तो ये वाला पाई 3.14 हुआ और ये वाला पाई 180 डिग्री हुआ। अब खाली ये नोट ऐड करो एकदम स्टार्टिंग में, सर्कुलर मोशन जहां पे सिनॉप्सिस शुरू हो रहा है वहां पे ये नोट ऐड करो। So 20th question, UCM पूछा है और फिर angular acceleration पूछा है। UCM पूछा and है, there was but angular angular acceleration. acceleration. एंगल एक्सेलरेशन तो 0 होता है। Question गलत है। हाँ तो क्वेश्चन गलत है। 20 8 रुक जा, हाँ मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था यूसीएम था, trend में बाद अभी जैसे फैन ऑन है तब ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है और बाद में बोला एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स,
मतलब मैंने फैन ऑफ किया, समझा बेटा? तो फिर वापिस बोलता हूँ, मतलब जब मैंने शुरू किया था ये यूसीएम था, इट्स लाइक द फैन वाज ऑलरेडी ऑन एंड इट वाज फॉलोइंग दिस इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर एसी भी चालू है, फैन भी चालू है, ठंडी लग रही है, फैन बंद करो ना प्लीज। तो 2 सेकंड के बाद का रीडिंग पूछा है, तो नाउ इट इज नो मोर यूसीएम। बराबर। 29th लिखा आपने, नोट लिखा सिर्फ 30 30 2 particles A and B, super fantastic. ये लास्ट पूरा पेज इंपॉर्टेंट मार्क किया। 2 particles A and B are of same mass, underline same mass, revolving in UCM, underline UCM, same radius, underline same radius, same angular velocity, underline same angular velocity. सब कुछ सेम है, तो क्या सेम नहीं है? A revolves in horizontal plane and B revolves in vertical plane. Everybody clear? Everybody clear? A ऐसे जा रहा है और B ऐसे जा रहा है। A ऐसे, मतलब A का डायग्राम कैसा बनेगा स्टूडेंट्स? ये ऐसे। This is particle A, okay, and this is particle B. This is particle B. But UCM doesn't occur in vertical. UCM doesn't occur in vertical. अरे ऐसा नहीं, Like just plane. एक मिनट, ये तो कर सकता हूँ ना मैं। ये मैंने वो मैरी गो राउंड का एग्जाम्पल दिया, ये मैं कर सकता हूँ ना, आई कैन मेंटेन दिस। हाँ, लेकिन जब मैं इसको वर्टिकल सर्कल वर्ड बोलूँ, उसके बाद में आई कैन प्रूव इट एज नॉन यूसीएम। क्या पूछा है इन्होंने? एंगुलर वेलोसिटी का शायद डायरेक्शन पूछा है। इफ द प्लेन इज हॉरिजॉन्टल, कैन आई से डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज वर्टिकल, एंड इफ प्लेन इज वर्टिकल, कैन आई से डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज हॉरिजॉन्टल? यस और नो? यस और नो? तो आंसर उल्टा आएगा। पार्टिकल ए हॉरिजॉन्टल सर्कल में जा रहा है, इसके लिए उसका एंगुलर वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, एंड पार्टिकल बी वर्टिकल सर्कल में जा रहा है, इसलिए उसका एंगुलर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में होगा। यस और नो? इसका मतलब आपका आंसर हो गया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हुआ और ये वर्टिकल एक्सिस हुआ। यस और नो? आंसर शुड बी बॉम्बे। आंसर शुड बी बॉम्बे, राइट? अभी मैं काम करता हूँ, आई विल चेक दिस प्रिंट आउट ऑल्सो। अगर ये प्रिंट आउट ठीक है, वो बोर्ड वर्क का और ये बोर्ड वर्क का मिलके, तो आपको ये प्रिंट आउट देता हूँ। घर पे जाके वर्किंग स्पेस में परफेक्ट फेयर वर्क करने का होमवर्क लिखो। होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास, होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास, homework for lecture number 5. Lecture number 5. Assignment 2. All except 20, 26 and 27. मैं और भी ढूंढता हूँ, अगर और भी कुछ कर सकते हो तो। होमवर्क लिखा? असाइनमेंट 3 में से कुछ नहीं कर सकते, 4 में से कुछ नहीं कर सकते, 5 में से कुछ नहीं कर सकते, 6 में से कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस पेपर 1, लेट मी चेक। प्रैक्टिस पेपर 1 में थोड़ा टफ है, बट ठीक है, दिमाग यूज करो। असाइनमेंट प्रैक्टिस पेपर 1, questions 1 to 19. (21 to 23). (32). 34, 35. 34, 35, 37, 41, 42, 43, 45, 6, 7,
8, 9, 45 to 49. अभी मेरा लेक्चर सीधा सैटरडे को है एंड 99.9% फर्स्ट को छुट्टी है फर्स्ट को, इसलिए वो लेक्चर हम लोग सेकंड को एडजस्ट करेंगे शायद. ओके सो हाँ आ गया ना, टाइम टेबल आ गया ना, बस डन. सर अगर सिर्फ फिजिक्स हुआ तो ऑनलाइन ले सकते हैं. सॉरी ऑनलाइन फिजिक्स सर नहीं नहीं सिर्फ फिजिक्स नहीं होगा, केमिस्ट्री भी होगा. केमिस्ट्री नहीं है. नहीं है. राठी सर ने नहीं रखा है. नहीं. इधर सर बोले वेडनेसडे टाइम टेबल दी, बाद में सोचेंगे. हाँ तो वेडनेसडे मिलो ना सर को, सर ने बैठ के टाइम टेबल बनाया था हमारे साथ में. और अगर ऐसा कुछ हाँ सीरियसली एक मिनट सीरियसली, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ ना सुनो, देन आई डोंट माइंड. अगर एक ही लेक्चर है तो हम लोग आप लोग फ्राइडे आ रहे हो इधर. So we don't normally come. पॉज करना बेटा, स्टॉप मत करना, पॉज.